Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter ninth, Weathering and Denudation. In this chapter, today we discuss the topic chemical weathering. Okay, in this chapter, we already discussed what is the weathering and types of weathering, and there are the total three types of weathering: physical, chemical, and biological. Okay, and physical weathering we already discussed in the last video, and today we discuss here chemical weathering. Okay, so first of all, again, definition: what is a weathering? Firstly, we discuss the first part, weathering, and after we discuss denotations. Okay, so what is the weathering? The breakdown of rock by the agent present in the atmosphere like temperature, moistures, and frost is known as weathering. I already told you what is a frost. It means when water collect in your rocks and during the daytime and nighttime when temperature decrease and below the 0 degree, then water convert into the ice. और वाटर जब भी लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उस वॉल्यूम की वजह से आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है. ओके, तो मीन्स वेदरिंग क्या हुआ? जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ रॉक by the different agent those are present in the atmosphere like a temperature, moistures, and frost. Okay, so we discuss here chemical weathering. So decomposition and disintegration of rock due to the chemical reaction is called chemical weathering. अब what is the decomposition? Means the process of decay. जब कोई चीज गलती है, सड़ती है. ओके, सो decomposition and disintegration, जब रॉक आपकी गल रही है एंड डिसइंटीग्रेशन ब्रेक डाउन हो रही है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन की वजह से, द कॉल्ड केमिकल वेदरिंग. लास्ट में फिजिकल में पढ़ा था जब टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, वाटर, इनकी वजह से जब आपकी रिलीज द प्रेशर्स ब्रेक डाउन हो रही है तो वो है फिजिकल वेदरिंग. लेकिन यह केमिकल रिएक्शन की वजह से जब रॉक ब्रेक डाउन हो रही है, इट्स कॉल्ड केमिकल वेदरिंग. डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन. एंड how chemical reactions react we discussed in this video. Okay, so chemical weathering leads to change in the chemical composition of mineral present in the rock. suppose को दिस पर्टिकुलर रॉक, ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो केमिकल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे टू द अनदर थिंग्स. ओके, और इजिली वो टूट जाएंगे. क्लियर? तो केमिकल वेदरिंग लीड टू चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, मीन जो ऑलरेडी रॉक्स में जो केमिकल कंपोजिशन बना हुआ है वो चेंज हो जाता है और ड्यू टू दैट आपकी रॉक इजिली ब्रेक डाउन हो जाती है. ओके, सो केमिकल वेदरिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. केमिकल रिएक्शन तो होगी लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर, जहां वाटर होगा वहां एरिया होगा, ह्यूमिडिटी वहां पर ज्यादा होगी, ह्यूमिड रीजन. ओके, सो देयरफॉर इट इज अ मोर पोटेंट. पोटेंट मींस हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस, कि जल्दी वो चीज इफेक्ट होती है. बिकॉज से कि केमिकल वेदरिंग आर मोर पावरफुल. ठीक है, इन विच रीजन? humid region, because chemical weathering always take place in the presence of water. Clear? So therefore it is a more potent, means powerful bolo या having great influence type of weathering in the humid region, because chemical weathering take place in the presence of water. Okay, so the rate of chemical weathering depend upon temperature also. ऐसा नहीं है कि आपकी जो chemical weathering होगी totally based on water. Somewhere temperature also play an important role to decompose or disintegration the rocks. Okay, so generally rate is higher in the tropical area with higher temperature. Clear? So next point, this type of weathering implies remove of some of the minerals from the rocks so that the rocks become porous. Porous, P-O-R-O-U-S. Porous means hole होना. Okay, and weak and start crumbling. अब ध्यान से क्वेश्चन को कि जो केमिकल वेदरिंग जो है वो करती क्या है, हाउ केमिकल वेदरिंग ब्रेक डाउन द रॉक्स. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इंप्लाइज रिमूव करिए, किसी को रिमूव करिए, ऑफ सम ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स. एक पर्टिकुलर रॉक है
इसके इनसाइड सम मिनरल्स आर देयर, ओके। अब होता क्या है, जब वाटर रिएक्ट करता है इस रॉक के इनसाइड जब वाटर जाएगा और केमिकल रिएक्शन करेगा, तो सम मिनरल्स होते हैं जो इजीली डिसॉल्व होते हैं वाटर के साथ। some minerals those are easily dissolved or some are those are not easily dissolved in the water, okay। so जो minerals easily dissolve हो जाते हैं वो पानी के साथ फ्लो कर जाएंगे, तो उसमें क्या है, आपकी रॉक्स में पोर्स बन जाएंगे, पोर्स मींस होल बन जाएंगी, ओके। और जब वो होल बन जाएंगे रॉक्स में, वो वीक हो जाएगी और स्टार्ट क्रम्बलिंग, मींस ब्रेक डाउन, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ लिखा है दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इंप्लाइज रिमूवल of some of the minerals from the rocks so that the rocks become porous and weak and start crumbling। पर्टिकुलर रॉक्स है जिसमें वाटर एंटर करेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, आफ्टर केमिकल रिएक्शन सम मिनरल्स आर दोस आर इजीली डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो गए, पानी में घुल जाएंगे, आफ्टर दैट रिमूव हो जाएंगे, और रिमूव होने की वजह से इस रॉक्स में क्या बनेंगे, बन जाएंगे होल्स, पोर्स बन जाएंगी, और पोर्स की वजह से आपकी रॉक वीक हो जाएगी एंड स्टार्ट ब्रेक डाउन, क्रम्बलिंग, तो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। So it involves a number of chemical process among which solution, oxidation, carbonation or hydration are the most important. So we discuss here four part of chemical weathering. There are four part. First is solution, oxidation, carbonation or hydration. So one by one we discuss all the point, okay। So first of all, solution. Solution is the simple process of chemical weathering, सबसे जो simple process है, okay। When rainwater fall on the land surface, it dissolves soluble minerals like sodium chloride present in the rocks। First of all क्या हो रहा है, जब rainfall occur, then your water enter the rock, और some rocks those are easily dissolve तक पानी में घुल जाना, okay। soluble वो easily घुल जाती है, कुछ ऐसे मिनरल वो soluble होते हैं, dissolve हो जाते हैं easily, okay। like a sodium chloride, like a सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है, ओके। तो सॉल्ट को तो जब पानी इसमें डालते हैं तो इजीली वो घुल जाता है, क्लियर। तो वैसे हमारी कुछ ऐसी रॉक्स होती है जो सॉल्ट में ज्यादा हो, सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो, जब वाटर उसके रिलेशन में आता है तो आपकी रॉक्स को वो डिसॉल्व कर देगा, ओके। एंड रेन वाटर में आल्सो पेनिट्रेट, पेन मींस एंटर कर जाना, बिलो द सरफेस, ओके। जब रेनफॉल होगी और उस स्पेशली रॉक में इसमें सोडियम क्लोराइड होगा, उसको इजीली डिसॉल्व कर देगा। कैसे डिसॉल्व करेगा, रेन वाटर में आल्सो पेनिट्रेट, पहले वो पेनिट्रेट करेगा, एंटर करेगा बिलो द सरफेस, मींस रॉक्स में एंटर करेगा, थ्रू जॉइंट एंड क्रैक्स, मींस जहां जॉइंट्स हो और क्रैक्स पड़े रॉक्स में, वहां से वाटर एंटर करेगा इन द रॉक्स एंड थस डिसॉल्व द सोल्यूबल मिनरल्स, और जो मिनरल इजीली डिसॉल्व होते हैं उनको वो सोल्यूब कर देगा, सोल्यूब मींस वो पानी में वो घुल जाएगा इजीली, ओके। एंड मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स below the surface also, okay। Give me this type of chemical reaction not only on the surface, below the earth surface also, okay। So clear, soluble के अब easy language में आपको समझाता हूँ यहाँ पर, और इसका पहले एग्जांपल चेक करते हैं। रॉक्स, because rock salt and gypsum are example of rock that can be removed through solution। अब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि some rocks are in our earth surface, those are easily dissolved by the water, okay। like a salt, कोई पर्टिकुलर रॉक से जब इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी और जब रेनफॉल अकर होगी, जब वाटर इसके साथ मिक्स होगा तो इजीली इसको डिसॉल्व कर देगा, तो आपकी रॉक जो कि वाटर के साथ मिक्स होके वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, क्लियर। ये आपको क्या है, सॉल्यूशन है कि सम रॉक्स आर दोज आर इजीली डिसॉल्व by the water, okay, like a salt। तो नेचुरल जब रेनफॉल अकर होगी एंड देन वाटर उस सॉल्ट वाली रॉक से मिक्स होगा तो इजीली वो डिसॉल्व हो जाता है, ओके। तो सम रॉक्स दोस आर इजीली डिसॉल्व बाय द वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ओके। लाइक एग्जांपल सॉल्ट एंड जिप्सम, ओके। तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल कि इन अवर सरफेस सो मेनी रॉक्स आर देयर एंड सम रॉक्स आर देयर दोस आर इजीली डिसॉल्व विद वाटर, ओके। वो क्या है, सॉल्यूशन है, ओके। And second point is also important, oxidation। So oxidation जो है is a process in which oxygen of atmosphere react with the minerals in the rocks and produce oxide। Oxide means होता है any compound of oxygen with another element, okay। कि means क्या है कि अब ऑक्सीडेशन कैसी होगी, जो वो पर्टिकुलर रॉक है
जब वो वाटर और ऑक्सीजन के रिलेशन में आएगी तो उसकी वजह से रॉक्स की जो केमिकल रिएक्शंस होगी तो उसके जो मिनरल्स होंगे वो अनदर में उसको कन्वर्ट कर देगी। ओके, तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद द मिनरल, कि एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन है जो वाटर के साथ मिक्स होगी और वही वाटर जो रॉक के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके मिनरल्स को वो ब्रेक डाउन कर देगा। और कैसे ब्रेक डाउन करेगा जो नो डिस्कस करते हैं। और नंबर ऑफ मिनरल otherwise insoluble become soluble after their oxidation, means in our earth surface so many rocks are there, those are insoluble, means easily वो dissolve नहीं होती है, लेकिन after the oxidation the rock convert in the soluble, पहले insoluble थी लेकिन जब ऑक्सीडेशन हुई केमिकल रिएक्शन हुई तो वो सॉल्यूबल होगी आफ्टर देयर ऑक्सीडेशन। ओके, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, जो फर्स्टली एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। दिस रॉक और इस पर्टिकुलर रॉक्स में क्या है, आयरन ज्यादा है। ओके, और आपने देखा होगा जो हमारा आयरन होता है वो बहुत सॉलिड होता है। ओके, जो वो स्टार्टिंग में कंपनी से बाहर आता है बहुत सॉलिड होता है, उससे हाउस या सो मेनी थिंग्स बनती है उससे बेटा। ओके, जब आयरन उसको हम वैसे ही बाहर खुला स्पेस में छोड़ दें, अपने अर्थ सरफेस पर रख दें, जब उसमें वाटर और ऑक्सीजन का इफेक्ट करेगा तो उसमें रस्टिंग आ जाती है। रस्टिंग समझते हो, उसमें जंग लग जाता है, वो रेड और ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ओके, एंड आफ्टर द रस्टिंग इजीली वो टूट जाता है। ओके, सो आयरन हम गेट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, और रॉक क्या है, मिक्सचर ऑफ सो मेनी मिनरल्स, तो उसमें आयरन भी होता है। ओके, तो सम रॉक्स दो some rocks are there in our surface those are containing the iron, इसमें आयरन टू मच है। और जब किसी पर्टिकुलर रॉक्स में आयरन टू मच है और जब वो रॉक ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगी उस पर्टिकुलर रॉक्स को रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, रस्टिंग हो जाएगी और ड्यू टू ऑक्सीजन और वाटर की वजह से। और जब रस्टिंग हो जाएगी तो नेचुरल बात है, जब रस्टिंग होती है तो वो वीक हो जाती है और इजिली ब्रेक डाउन हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि दिस प्रोसेस मोस्ट इफेक्टिव इन द केस ऑफ रॉक हैविंग अ लार्ज कंटेंट ऑफ आयरन कंपाउंड, मींस ऑक्सीडेशन आपको कहां देखने को मिलेगी, जिस पर्टिकुलर रॉक्स में आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ सच रॉक्स फॉर्म द येलोइश और रेडिश कलर दैट क्रम्बल्स इजीली, रेडली मींस इजीली वो टूट जाएगी। क्लियर, सो ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक कंटेनिंग आयरन कंपाउंड इज सिमिलर टू रस्टिंग ऑफ आयरन, सेम प्रोसेस जैसे हमारी रस्टिंग आयरन हो रही है वैसी रॉक में होती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन सिंपल प्रोसेस है, इसमें जस्ट क्या है, एक पर्टिकुलर रॉक है, जिस पर्टिकुलर रॉक में आयरन की क्वांटिटी टू मच होगी तो वो जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगी वो रॉक तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी, और रस्टिंग हो जाएगी उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होगा इसलिए वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्लियर, दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद द मिनरल, और मिनरल कौन सा है, आयरन। जिस पर्टिकुलर रॉक्स में आयरन की क्वांटिटी टू मच होगी एंड दैट पर्टिकुलर रॉक जब रिएक्ट करेगी विद ऑक्सीजन एंड देन उस पर्टिकुलर रॉक्स में क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। पहले आयरन क्या है, इट इज अ इनसॉल्यूबल, आयरन जो होता है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में, लेकिन आफ्टर रस्टिंग आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर, यही क्या कि केमिकल रिएक्शन है। ओके, कि पहले आपके जो मिनरल्स होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस कम टू द सॉल्यूबल थिंग्स। ओके, तो फर्स्ट में डिस्कस किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस द कि सम रॉक्स आर दोस आर इजीली डिसॉल्व विद वाटर, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है और पानी में घुल के टूट जाती है। ओके, एंड ऑक्सीडेशन मींस होता है कि दिस टाइप ऑफ weathering specially occur in the that particular rock those are containing iron. Okay, एंड इसमें जो प्रोसेस हुई सेम लाइक आयरन रस्टिंग की तरह। ओके, कि जब पर्टिकुलर रॉक ऑक्सीजन के रिलेशन में आएगी एंड आफ्टर दैट रस्टिंग अकर होगी, और रस्टिंग के बाद इजीली आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, दिस इज सेकंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन। नाउ थर्ड पॉइंट, कार्बोनेशन। सो कार्बोनेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ atmospheric carbon dioxide with rock mineral, and some of the minerals that are otherwise not soluble can be removed easily through this process. Again वही बात यहाँ पे लिखी है कि आपके फर्स्ट हमारे पास का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस इजीली डिसॉल्व हो रहे हैं सब मिनरल्स लाइक अ सॉल्ट।
सेकंड डिस्कस किया ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीजन की वजह से जब केमिकल रिएक्शन हो रही है और आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो रही है। अब कार्बोनेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की, ओके, कि सम मिनरल्स आर देयर दोज आर नॉट इजली soluble, मीन डिजॉल्व नहीं होती इजिली, ओके, लेकिन आफ्टर द कार्बोनेशन दे आर इजिली, वी कैन से इजिली soluble। वही बात यहाँ पे लिखी है कि कार्बोनेशन इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विद रॉक एंड मिनरल्स, एंड सम ऑफ द मिनरल्स दैट आर otherwise not soluble can be removed easily through this process। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। दिस रॉक, और स्पेशली आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लाइमस्टोन का, ओके। और लाइमस्टोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट नॉट इजिली डिजॉल्व विद वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी वाटर के साथ इजिली डिजॉल्व नहीं होता, वो नहीं घुलता है, ओके। सो लाइमस्टोन क्या होती है, वो सॉलिड रॉक है, आपका जो मार्बल है वो लाइमस्टोन से बनता है, ओके, ड्यू द ग्रेट टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, क्लियर। सो लाइमस्टोन जो होता है इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होके जब लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करेगा, और लाइमस्टोन में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो CO2 जब रिएक्ट करेगी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, उसको कन्वर्ट कर देगी सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, ओके। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल है, वो पानी में नहीं घुलता है, लेकिन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन विद CO2 इट कन्वर्ट टू द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट इजिली डिजोल्व हो जाता है। पहले आपकी रॉक थी लाइमस्टोन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें फिर क्या हुआ, CO2 और वाटर ने रिएक्ट किया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और आफ्टर दैट इजिली ब्रेक डाउन होगी, क्लियर। तो दिस इज अ कार्बोनेशन। सो लाइमस्टोन इज अ स्पेशली ससेप्टिबल, इजिली इम्प्रेस्ड, जो इजिली इफेक्ट हो जाती चीज बेटा, ओके, उसके यूज होता है वर्ड ये ससेप्टिबल टू दिस प्रोसेस, मींस लाइमस्टोन स्पेशली इस प्रोसेस के लिए सुटेबल है, ओके। तो जनरली द लाइमस्टोन, उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इज नॉट सोल्यूबल, लाइमस्टोन इजिली सोल्यूबल नहीं होता है, डिजोल्व नहीं होता है इन द फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में इजिली वो डिजोल्व होता है, बट द रेन वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जब रेनफॉल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, एंड इट एक्ट एज अ माइल्ड कार्बोनिक एसिड, ओके, एंड कन्वर्ट द कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करता है calcium bicarbonate, those are easily dissolved with water, okay। So thus rain water erodes the limestone and other calcareous means containing calcium carbonate, जो other rocks में calcium carbonate हो, ठीक है, जब वो रिएक्ट करेगा तो वो बाई कैल्शियम कार्बोनेट में, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, तो इसलिए वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थर्ड कार्बोनेशन, ओके। एंड थर्ड प्रोसेस हियर, सॉरी फोर्थ, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन इज द प्रोसेस involving absorption of water by some mineral in the rock and their crumbling into powdery mass, कि मीन्स on our surface बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो वो वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व वाटर बाय सम मिनरल्स, ओके, एंड इट कन्वर्ट इनटू द पाउडरी मास, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में होते हैं। वो कैसे होता है, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स पार्टिकल्स, जब वाटर एंटर करता है तो सब मिनरल्स वो एक्सपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सपेंड, वो फूल जाते हैं, जो एक्सपेंड हो जाएंगे, एंड इट कॉज स्ट्रेस विद इन द रॉक, तो उसकी वजह से जब एक्सपेंशन होगी तो रॉक में स्ट्रेस बढ़ेगा, एंड द रॉक मे बी क्रम्बल ड्यू टू दिस स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस की वजह से आपकी रॉक क्रम्बल हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है और टूट जाती है, क्लियर। एंड क्ले एन एग्जांपल ऑफ रॉक हाईली ससेप्टिबल टू दिस प्रोसेस, जो क्ले होता है लाइक मड की तरह दिखती जो रॉक सॉइल होती है हमारी, ठीक है, और मड मींस पाउडरी मास, कि जब आपके वाटर की वजह से कुछ मिनरल्स जो वाटर को इजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसकी वजह से आपकी रॉक एक्सपेंड करती है, उसकी वजह से स्ट्रेस ऑरिजिनेट होता है इन द इनसाइड द रॉक, एंड उस ड्यू टू दैट स्ट्रेस योर रॉक कन्वर्ट टू द पाउडरी मास, पाउडर मींस बिल्कुल फाइन पार्टिकल लाइक मड की तरह वो कन्वर्ट हो जाती है रॉक, ओके। दिस इज द हाइड्रेशन after the chemical reaction. So we discuss here the four main chemical reactions, chemical weathering. First we discuss soluble, second we discuss
Second we discuss here, first soluble, second we discuss oxidation. In soluble we discuss some minerals those are easily dissolved with water. Okay, तो like a salt, रॉक आपकी इसमें सॉल्ट ज्यादा है, जब वाटर के रिलेशन में आई तो इजिली ब्रेक डाउन होगी. ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, like a rusting. Is the particular rock those are containing the iron, and when iron react with the oxygen and water तो उसके ऊपर फिर रस्टिंग होगी, एंड आफ्टर द रस्टिंग योर रॉक इजिली ब्रेक डाउन. ओके, एंड आफ्टर वी डिस्कस हियर फोर्थ पॉइंट, कार्बोनेशन. ओके, सो कार्बोनेशन में रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. ये मींस यहाँ आपको एग्जांपल दिया था कि द पर्टिकुलर रॉक उसमें क्वांटिटी आपकी लाइमस्टोन की, और लाइमस्टोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये इनसोल्यूबल होता है, इजिली डिसॉल्व नहीं होता है. ओके, लेकिन जब आपकी इधर पर्टिकुलर लाइमस्टोन रिएक्ट करेगी CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, so it convert calcium carbonate to into soluble calcium bicarbonate, और calcium bicarbonate easily dissolved by the water. Okay, तो इसके बाद वो dissolve हो गया. Clear? And fourth we discuss here hydration. In that part some minerals are there, those are absorb the water, and after the absorb water उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होती है, और उसकी वजह से इनसाइड द रॉक एक स्ट्रेस ऑरिजिनेट होता है, और स्ट्रेस की वजह से ये रॉक कन्वर्ट द पाउडरी मास. ओके, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन. So to be discussed here, your topic chemical weathering. Clear? Thank you.